So, today's topic is nutrition assessment or reassessment form for pediatric patients, as we are discussing about different formats used by the dietitian in the hospital uh, management of the patients, right? So here you can see as like we should write down the patient's name, age, registration number, date of visit, height, weight, and BMI sometimes, as well as the diagnosis of the patient. Then, as we all know, like for the patients, the children patients especially, we need to know about the height and weight because that is the growing age of the patients, right? Otherwise, for other patients, we need to calculate the BMI, like they are overweight, underweight, or undernourished, or obese. But here we need to see the in their growth pattern, how they are doing. Okay. So here, weight for age is I will show this chart also, growth chart. Here, if that growth chart shows like more than 85 percentile, then a score will be 0. Per normal percentile, it will be 5th to 85th of the growth pattern. And if it is less than 5% percentile, then it is underweight. And there we will write down the 2 score. And for normal, we will write down the 1. And if it is more than 85 percentile, then we will write down 0 score. Why? Because during the childhood, sometimes patient or child is obese or overweight, but the scoring will be 0 only, because after some time they may be reduce their weight due to the add-on activities, or maybe changes in the lifestyle, maybe changes in the diet pattern, and so many things, right? Then the second step is the disease effect score, how much disease is affecting of the patient. First is the dietary intake. In that, the dietary intake, if they are eating as they are eating earlier before the disease, means no changes, no charge nahi hai, no change hai. Okay, that is 1. And then suboptimal semi-solid diet, that is 2. Then 2 second point is like third, means score will be the 3, that is full liquid diet. Okay, patient is taking only the liquids, moderately overall decreased, like जैसे वो पहले खाता था उससे काफी कुछ कम हो गया होगा, तो हम उसको लिक्विड डाइट, मॉडरेटली लिक्विड डाइट पे डालेंगे और उसको हम 3 स्कोरिंग करेंगे. और अगर वो खिचड़ी, दलिया, सूजी खीर और कभी बटर टोस्ट या हल्की फुल्की चीजें खा पा रहे हैं या सेमी सॉलिड डाइट ले रहे हैं, तो हम उसको 2 स्कोरिंग करेंगे. और अगर बच्चा प्रॉपरली पूरा खाना जैसे पहले खाता था, उसकी डाइट में कोई चेंजेस नहीं है, तो उसको हम नॉर्मल डाइट बोलेंगे. ठीक है, देन वी विल गिव द स्कोर 1. ओके, देन हाइपोकैलोरिक डाइट मींस वो नहीं खा रहा है, काफी सीवियरली मैलनरिश्ड हो चुका है, पहले भी वो नहीं खा रहा था, तो उसको हम 4 स्कोरिंग करेंगे. एंड स्टारवेशन इज ऑल्सो अगेन 4, तो ये सीवियर स्कोरिंग में आ जाएंगे. ओके, तो 1 2 3 4 इस तरह से हम स्कोरिंग करेंगे. सेम वे में उधर आ जाएगी आपकी कैसे 0 1 2 3. तो फिर इन दोनों को अगेन हम कैलकुलेट करेंगे, लाइक नीचे सेकंड स्टेप में कितनी आई और फर्स्ट स्टेप में कितनी आई, फिर टोटल हम उसको करके लिखेंगे नीचे. ऊपर जो अभी हमने 2 चीजें लिखी, दैट वाज फॉर द 0 to 2 years, देन कम टू द 2 to 16 years अगेन. तो पैटर्न सेम है, लेकिन हम 2 साल तक के बच्चों का अलग करेंगे और 2 से 16 साल के बच्चों का अलग लिखते हैं, सो दैट वी कैन नो ऑल्सो कि ये किस एज ग्रुप का बच्चा है, लाइक टॉडलर है या बड़े बच्चे हैं. फिर टोटल स्कोर हम लिख देंगे यहाँ पर कितना आ रहा है. 1 to 3 के बीच में आ रहा है तो इधर टिक करेंगे, 4 to 6 के बीच में आ रहा है तो मीडियम रिस्क, 7 to 10 के बीच में आ रहा है तो हाई रिस्क. और टोटल स्कोर वहां पर जो भी आएगा, लाइक 2 ऊपर सेकंड स्टेप से आया सपोज और 1 फर्स्ट स्टेप से आया, देन वी विल राइट डाउन अगेंस्ट दिस लाइन टोटल स्कोर इज 3, एंड अकॉर्डिंगली वी विल टिक द मार्क हियर. आप जहां देख पा रहे हो ये एम्प्टी जो आपको दिख रहा है, ओके, इस जगह पर. और अगर 1 2 3 है तो लो रिस्क पर रहेगा और कोई एक्शन की जरूरत नहीं है. न्यूट्रिशनल रीअसेसमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं हम 10 दिन में एक बार. ठीक है, अगर पेशेंट तब तक रहेगा. और अगर पेशेंट का 4 to 6 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब मीडियम रिस्क पर है, तो फिर हम उसको थोड़ा एनकरेज करेंगे कि जो भी खाना आ रहा है या आपको बैलेंस डाइट खानी है, तो अगर आप घर से खाना चाह रहे हो, मिक्स एंड मैच करना चाह रहे हो, तो जो बैलेंस डाइट उस एज ग्रुप के बच्चे के लिए होनी चाहिए एज पर द डिसीज, वो हम उसे गाइड करेंगे. और न्यूट्रिशन असेसमेंट हम फिर से 3 days के बाद करेंगे.
7 to 10 में मतलब हाईएस्ट रिस्क में आ जाता है, तो उसका हम स्पेशल न्यूट्रिशन केयर प्लान बनाएंगे कि कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, कितना उसको एक्स्ट्रा में डाइट में देना है, और अगर उसको एंटरल फीडिंग भी स्टार्ट करनी है तो उसमें हमें कितना देना होगा, वो हम रेगुलरली कितना उसको खा रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करके चार्टिंग भी करें. ओके, सो इन दिस वे विल डू द न्यूट्रिशन केयर प्लान. न्यूट्रिशन केयर प्लान में यहाँ फिर आप लिखोगे कि क्या चीजें आपको करनी है और कैसे करनी है ना. हाँ गुरविंदर. हेलो मैम, मैं 4 बजे से लगी हूँ क्लास में, आईडी वो लगी नहीं रही. बेटा सबकी लग रही है, सभी लोग आए हैं, आप सारे लोग तो आए हैं, आप एक बार ऑफ ऑन करके देखो. मैं 4 बजे से लगी हूँ. बट मेरे बेटा सारे लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है. शुभिना हाँ मैसेज कर रहा है. बाकी भी नहीं खोल रही. हाँ, मैंने भी सुबह से भी बात कर रही हूँ, वो चल रही है, मतलब मेरी चली नहीं रही. तो आप एक बार वापस से अपना आपके फोन में प्रॉब्लम आ रही होगी या सिग्नल में प्रॉब्लम होगी, तो आप एक बार दोबारा से स्विच ऑफ ऑन करके फिर से ज्वाइन कीजिए, है ना. ठीक है. हाँ, सिग्नल में कई बार इशू आता है ना, तो कई बार नहीं होती है ज्वाइन. ओके, तो इन दैट वे न्यूट्रिशन केयर प्लान हमको करना है. फिर हम यहाँ लिख लेंगे लाइक डिसीज के अकॉर्डिंगली क्या खाते हैं पेशेंट, क्या नहीं खाता है पेशेंट, उसके हिसाब से हम प्लानिंग लिखेंगे. फिर जो डाइट रिकमेंडेड होगी लाइक नॉर्मल डाइट, सॉफ्ट डाइट, लिक्विड डाइट, ब्लेंड डाइट, व्हाटएवर इट इज, है ना. हाई प्रोटीन होगी या लो फैट होगी, या हो सकता है आपकी लो फाइबर डाइट हो. जो भी डिसीजेस के अकॉर्डिंगली पेशेंट की डाइट होगी वो हमको यहाँ मेंशन करनी होगी. फिर डाइटिशियन का नेम एज यूजुअल जैसे हम पिछली बार लिख रहे थे, टाइम और डेट लिखना होगा. और ये असेसमेंट ड्यू कब है, 3 दिन के बाद है, 10 दिन के बाद है, या जरूरत नहीं है. तो अगर ड्यू जरूरत नहीं है तो हम यहाँ खाली छोड़ देंगे, और अगर जरूरत है तो 3 डेज लिख देंगे या 10 दिन लिख देंगे. ठीक है. और न्यूट्रिशन केयर प्लान जैसे मैंने अभी बताया था, हाई रिस्क वाले जो पेशेंट्स हैं जिनका आपको बनाना है रेगुलर बेसिस पे, तो उनका किलो कैलोरी का गोल कितना है और प्रोटीन का गोल कितना है, ये हमको मेंशन करना है. और अगर एनी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है तो भी वो हमें यहाँ मेंशन करना है. ओके, ठीक है. तो इसके हिसाब से हमको उस चीज को मेंशन करते हुए लिख के और उसके अकॉर्डिंगली हमें प्लानिंग पूरी करनी होगी. कैलकुलेट करना होगा कि कितना एज के अकॉर्डिंगली, हाइट के अकॉर्डिंगली कितना उसको जरूरत है, कितना हमें एक्स्ट्रा देना है, वो हमें मेंशन करना होगा. राइट. देन ये आप देख सकते हो बॉयज का ग्रोथ चार्ट है. इसको मैं थोड़ा छोटा करके आपको दिखाऊं तो सही से दिख जाएगा, है ना. ठीक है, दिस इज हियर यू कैन सी कि बॉयज का जो ग्रोथ चार्ट है आप लोग देख पा रहे होगे. इसमें एक तरफ तो एजेस में जो हमारा एक्सेस है एक्स वाला, उसमें हमने दिखाया है एज 0, 0.5, 1, 1.5, 6 ईयर्स. मीन्स ये कह सकते हैं आप 6 महीने का. ठीक है, दिख रहा है एक्सेस में, एक्स में. वाई एक्सिस पे आपका क्या है, आपकी हाइट है और आपका वेट. नीचे की तरफ से अगर हम इसको शुरू करेंगे, नीचे की तरफ से हो गया क्या. ठीक है, ये आप लोगों को ये जो चार्ट है ये आपको उस पर मिल जाएगा, गूगल पर भी मिल जाएगा. बॉयज के लिए अलग होता है और गर्ल्स के लिए अलग होता है. तो नीचे की तरफ से इसमें इसकी हाइट शुरू होगी और ऊपर की तरफ हम वेट को कंसिडर करते हुए चलेंगे. सॉरी. फर्स्ट जो आप देख पा रहे हो, फर्स्ट ग्राफ और सेकंड ग्राफ के बीच में अगर आपके पैरामीटर आते हैं तो ये आपका हो जाता है 0 to 5%. ठीक है, और ऊपर का अगर आपका जो सबसे ऊपर वाला आप देख पा रहे हो 90% है, तो 90 से अबव आ रहा है या 7, तो वो आपका आ जाएगा अबव 85% वाले में. गुरविंदर कैसे हुआ फिर अब ज्वाइन बेटा, क्या हो गया था. आईडी और पासवर्ड का हो रहा था मैम. चलिए, ठीक है, इन दैट वे इट विल वर्क. सेम वे में आपका गर्ल्स का है. बाकी बॉयज और गर्ल्स में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यही एक डिफरेंस है कि बॉयज और गर्ल्स का जो चार्ट होता है वो डिफरेंट होता है. ठीक है. देन वी कम टू द न्यूट्रिशन असेसमेंट फॉर प्रेगनेंसी. न्यूट्रिशन असेसमेंट फॉर प्रेगनेंसी भी अगेन डिफरेंट होगा, क्योंकि उस टाइम पे हमको कुछ पैरामीटर्स को चेक करना रहेगा कि उसकी वेट प्रॉपर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, आयरन, कैल्शियम और ये सारी रिक्वायरमेंट उनकी कैसी है ना. ये मुझे आपसे पूछना था, मैंने अपने आप ही बता दिया, नो प्रॉब्लम. ओके,
तो बाकी स्टार्टिंग के पैरामीटर सेम ही रहेंगे अगेन, कि पेशेंट का नाम क्या है, एज क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, डेट ऑफ विजिट हमारी क्या है, हाइट, वेट, बीएमआई एंड द डायग्नोसिस। अब बीएमआई में यहाँ पर थोड़ा सा है कि बीएमआई कहीं हम बाद की वेट से ना करें, क्योंकि बाद की वेट से अगर आप बीएमआई करोगे, अगर 9 मंथ प्रेगनेंसी है तो हमेशा वो हाई ही आएगा। तो जो प्री प्रेगनेंसी उसका हाइट वेट होता है, बीएमआई हम उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। ओके, यू कैन सी हेयर न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग में प्री प्रेगनेंसी वेट लिखा हुआ है, फिर प्री प्रेगनेंसी बीएमआई हमने कैलकुलेट किया है, प्रेगनेंसी का कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, वो हम मेंशन करेंगे। फिर करंट वेट जो है आज की डेट में वो हम मेंशन करेंगे, और ट्राइमेस्टर में वेट गेन स्कोर कैसा है वो हमें पता होना चाहिए कि कितनी बीएमआई पे कितना वेट बढ़ना चाहिए। तो दिस इज द होमवर्क फॉर टुडे, यू कैन राइट डाउन दिस होमवर्क कि how much weight gain will be there in different trimesters of the pregnancy. Okay, I'm just writing it down क्योंकि फिर मैं भूल जाती हूँ, फिर तुम लोग मुझे पूछते हो क्या क्वेश्चन था। How much weight gain ठीक है, ये आपका हो जाएगा। फिर ट्राइमेस्टर के वेट गेन स्कोर फिर हम अकॉर्डिंगली देंगे कि अगर आपका नॉर्मल वेट गेन हो रहा है तो हम उसको 0 स्कोर दे देंगे, और अगर हमारा लेस वेट गेन हो रहा है तो हम उसको 2 दे देंगे। ठीक है, वीक्स ऑफ जेस्टेशन भी हमें मेंशन करने हैं इसमें। देन बायोकेमिकल पैरामीटर्स को हमको देखना है, आयरन और कैल्शियम अगर नॉर्मल चल रहा है तो 0 है, और अगर हमारा कम है अगेन तो हमारा 2 हमें मेंशन करना है। ठीक है, और अगर डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है तो 2 करेंगे, और अगर नॉर्मल है तो हम 0 करेंगे। ओके, ठीक है, वीक। अच्छा हाँ, और ये देखो अगर लो वेट गेन अगर है रहा है तो आपका 4 करेंगे, सॉरी। हाँ ठीक है, कैल्शियम आयरन अगर आपके लो है तो फिर हम 2 लिखेंगे, और सेम वे में अगर एस्टियन डायबिटिक है तो हम 2 लिखेंगे। ओके, तो इस तरह से आपके पैरामीटर 4 2 2 यानी 8 भी हो सकता है। फिर टोटल स्कोर आप यहाँ मेंशन करोगे कितना आया, कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं या नहीं है वो आप मेंशन करोगे, और 0 to 2 के बीच में अगर टोटल आपका आता है देन नो एक्शन इज रिक्वायर्ड, बट न्यूट्रिशनल रीअसेसमेंट शुड बी कंटिन्यूड वंस इन 10 days। देन मीडियम रिस्क अगर आ रहा है तो 2 to 6 पेशेंट इज एनकरेज टू ईट बैलेंस डाइट, नॉर्मल न्यूट्रिशनल रीअसेसमेंट शुड बी कंटिन्यूड। हाई रिस्क अगर आपका है तो न्यूट्रिशन केयर प्लान शुड बी इनिशिएटेड, और कैलोरी चार्टिंग जो आपकी है वो करी जाएगी अगर 6 से ज्यादा आ रहा है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना होगा कि उसको स्पेशल नीड्स क्या है पेशेंट्स की वो हमें देखनी होगी, बिकॉज बेबी इज ग्रोइंग इनसाइड द वूम, है ना, और डिलीवरी के बाद भी उसको पोस्ट डिलीवरी फीड भी कराना है, तो हमें बहुत स्पेशल केयर देनी होगी विद रिस्पेक्ट टू प्रेग्नेंट वुमन। ठीक है, फिर वो न्यूट्रिशन केयर प्लान हम यहाँ लिख देंगे, अगर कुछ डेफिशिएंसीज के अकॉर्डिंगली प्रोटीन एक्स्ट्रा या आयरन एक्स्ट्रा या कैल्शियम एक्स्ट्रा या कोई भी चीज एक्स्ट्रा करनी है हमको, या कोई भी चीज कम करनी है तो वो हमें यहाँ लिखनी होगी। और डाइट क्या रिकमेंडेशन आ रही है, बिकॉज एज पर द पोजिशन या पेशेंट्स कंडीशन, लाइक अगर सिजेरियन केसेस हैं तो वो पहले हो सकता है कुछ दिन के लिए एनपी होगा, फिर उसके बाद लिक्विड डाइट पर जाएगा, फिर सॉफ्ट डाइट पर जाएगा, फिर नॉर्मल डाइट पर जाएगा। सेम वे अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो उसमें भी फर्स्ट डे में भी इमीडिएटली कई बार कुछ डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं नॉर्मल डाइट, कुछ डॉक्टर्स कहते हैं सॉफ्ट डाइट लेना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ सारे पैरामीटर्स आपके मेंशन करते हुए हमको डाइट रिकमेंड करनी होगी। सेम वे डाइटिशियन का नेम, टाइम एंड डेट रिविजिट, और अगर असेसमेंट रिक्वायर है तो वी हैव टू राइट डाउन हियर। ओके, और रीअसेसमेंट में अगेन कोई स्पेशल न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है या फिर किलो कैलोरी गोल्स की रिक्वायरमेंट है या प्रोटीन के गोल्स की रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। और अगर हाई रिस्क पर पेशेंट्स हैं तो डेली बेसिस पे यहाँ एनर्जी इनटेक और प्रोटीन इनटेक को भी मेंशन किया जाएगा। राइट, मींस उनकी हमें डेली कैलकुलेशन करनी होगी डाइट में कि उनकी कैलोरी कितनी है और उनका प्रोटीन कितना है। ओके, देन वी कम टू द डाइटरी रिक्विजिशन शीट। मैं इसको अभी आज बताऊं या इसको मैं सोच रही हूँ कल बताऊं। आज आप लोग क्या काम करोगे, आज आप लोग एक काम करो, अभी मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ शेयरिंग करना। पहले तो अभी आप लोग पूरा प्लान कीजिए, लाइक एक नॉर्मल डाइट का कैलकुलेशन करो। ठीक है, एक सेकेंड अभी रुको।
मैम आई हैव अ क्वेरी। हाँ बोलिए। मैम जैसे कि फॉर्म में ये दे रखा हाई रिस्क पेशेंट वाले